Greetings everyone. So children, today I am going to teach you about nutrition and animals, class 7. Alright. So children, you are aware that why do animals need to do nutrition? Because they need to have energy. Plants can prepare their own food, so they don't have to move from one place to another, and hence their nutrition requirement is pretty less, and they can prepare their own food also, right? So in first chapter you studied about nutrition in plants, and in this chapter we will study about nutrition in animals. Okay, animals in particular, you know it that some animals they eat only grass, so we call them herbivores, like deer, like cow. Then there are some animals which eat the flesh of the other animals, like lion, tiger, so we call them carnivores. And the third category, जिसमें most of the humans fall, that is omnivores. Omnivores means the animals including us which can eat both grass, I mean vegetarians, and as well as they can eat the flesh of the other animals. For example, not only humans, we also have crow, dog, cat, bear, these all fall into the category of omnivores. So if it comes for you to differentiate between these three, you can always do it. And there are 2 points when you do a differentiation question. Always remember this, that first you have to do it in a table form, right? It has to be done in a table form. And secondly, always give example. Never forget to write the example. You will always get full marks. So from the animals, like why do animals need food? Animals need food because they need energy. For what they need energy? First, to complete their life processes. For all the processes, they need energy. For running, they keep on roaming around in search of food, in search of shelter. So they need energy. So animals need nutrition. Animal needs food because they require energy to live life in a nutshell, right? We'll begin with the nutrition in animals, and for that we'll begin with the digestion in humans, right? Now digestion in humans, we can always divide it into 5 parts. What are those 5 parts? We'll begin with ingestion. We'll begin with ingestion. Ingestion matlab खाना खाना. Then we need to digest it. Basically digestion, what is the purpose of digestion? To break the food into simpler forms so that enzymes can work on it and energy can be released. So once digestion is done, then absorption by the body. After the absorption, we have assimilation. Assimilation means that digested food should reach, the nutrients should reach to each and every cell of the body. So that is the assimilation. And lastly, digestion. Lot of waste material is also there, and that waste material needs to be thrown out of the body. So digestion is there for that. Alright. So the nutrition in animals actually takes place in these 5 steps. आपको याद रखने हैं. These are the basic 5 steps through which the digestion, the nutrition takes place. First of all is ingestion. Okay. Now you might be seeing this diagram. This is the alimentary canal or the digestive system of the humans. These are the various organs which are part of that digestive system. We'll begin with the buccal cavity, your mouth. Then there is esophagus. O is silent here. Esophagus is the food pipe which opens into a J-shaped bag, that is the stomach.
and then it opens into the small intestine. I'll be reaching there and then I'll be telling you in detail. Then we have the large intestine, rectum, and through anus the digestion takes place. There are certain glands associated with this alimentary canal. What are those glands? The largest gland of the body, liver and pancreas. ठीक है? Once I'll start from the beginning, I'll be telling you their function also. So let us begin with the buccal cavity or your mouth. Every animal ingests through the mouth. In humans, buccal cavity has three important features: 32 teeth, tongue to mix the food, and of course you can feel the taste. You love taste. During the lockdown, people are enjoying food. That is the best thing which is making them staying at home. Mommies are cooking lot of food. Anyways, and third is salivary gland. So we'll take one by one. First comes your 32 teeth. Now in humans, when a child is young, there are 20 teeth only, like right from the infancy to the age of 6 to 8 years, there are 20 teeth. We call them milk teeth. Now these 20 milk teeth are later on replaced by the permanent teeth. Milk teeth can be regenerated, permanent teeth cannot. So you need to take care of your teeth, their health. So there are 4 types of teeth, the 32 types of teeth. There are 4 types of teeth in that. First type is incisor. आपके आगे के 2, ये 4 और ये 4. ठीक है? Incisors का क्या काम होता है? Biting. Next you have a pointed tooth next to the incisors. They are the canine. Humans actually cook their food, so their canines are neither sharp nor very pointed. But if you remember the teeth of the tigers and lions, their canines are hook shaped, right? And very much pointed. What is the purpose? The purpose is it helps them to tear the food. है ना? अगर आप suppose if you are eating a chicken leg, तो आप यहाँ से बाइट करने के बजाय अगर जरा सा भी हार्ड है, स्पेशली मटन when it is cooked at times it remains hard, you use your canine because canine helps you to tear it. Well, now premolars and molars, their purpose is to crush and grind the food. Now what is the purpose of digestion? Suppose this is a complex food. Digestion converts it into simpler forms so that body can absorb the nutrients. So we have 16 teeth in the upper jaw, 16 teeth in the lower jaw. Next we have is the tongue in the buccal cavity, है ना? What is the purpose of the tongue? Tongue का क्या काम है? एक तो ये आपको 5 तरीके के टेस्ट फील कराती है ना? It's a sense organ. Most important thing is that inside your buccal cavity, salivary glands are there which secrete the saliva. है ना? You all are aware of what is saliva. So saliva actually contains a very important enzyme, and the name of that enzyme is salivary amylase. Now what does salivary amylase do? Salivary amylase starts the digestion of starch present in the food. Starch आपने देखा होगा, नहीं तो आज आप करिएगा. While eating, you take a piece of the chapati, only chapati, nothing added to it, no sabji, no ghee, nothing. You just chew the chapati for a while, and after some time you get a slightly sweeter taste in your mouth. Where does it come from? It comes from, like when you are mixing, when you are chewing the chapati, your buccal cavity, your mouth is secreting the salivary amylase. That salivary amylase is converting starch into glucose. ठीक है? Starch into
glucose. And because of this glucose, you have the sweeter taste. So the question might come that which food particle or nutrient gets digested in the mouth or in the buccal cavity? It is the starch, right? So from the buccal cavity, now the food is moving, we call it bolus. Bolus is moving into the food pipe. आपको पता है आपके गले में दो पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, और उसके बगल में ही पैरेलल चलती है आपकी विंड पाइप विच इज कवर्ड विद अ मस्कुलर लिड, है ना. अ गुड eating habit is that you should not talk or you should not laugh while eating. Reason being, the food might move from the food pipe into the wind pipe. It can get stuck there. आपने देखा होगा ना, कभी कभी आपके संग ऐसा हुआ भी होगा कि आप खाना खाते समय बहुत हंस रहे थे और खाना आपको फंस गया, खांसी आने लगी, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर थे साथ में, उन्होंने पीछे आपको यहाँ पर थपथपाया, पैट किया, तो वो खाना वापस फूड पाइप में चला गया और आपकी जान में जान आई. छोटे बच्चों में कॉइन चला जाता है या कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं गलती से कि एट टाइम्स उनका विंड पाइप चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो जब हवा आएगी नहीं, जाएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट कैन बिकम फेटल एंड द पर्सन माइट डाई. ठीक है, तो सफोकेशन हो जाता है ना. फूड पाइप में आया फूड, वील कॉल इट बोलस नाउ. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं है. तो फूड का मूवमेंट अब फूड पाइप या इसोफेगस में कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है. सपोज दिस इज योर फूड पाइप एंड द फूड इज हियर, ठीक है. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, और ये पुश हुआ, तो नीचे जो रिलैक्स था उसमें ये पुश हुआ, ये यहाँ आगे आया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे वाला फिर से रिलैक्स हुआ. सो हियर द फूड मूव्स विद कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation because this is the muscular food pipe, right? So the food is moving as contraction and relaxation. आपने पाइप में देखा होगा, पानी के पाइप में आप एक जगह से दबा दीजिए तो आगे जो है वो रिलैक्स हो जाता है और बहुत प्रेशर से पानी फिर आगे जाता है ना. तो यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपकी इसोफेगस या फूड पाइप में होता है एंड वी कॉल इट पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस, ठीक है. This food movement is known as peristalsis and due to it the food moves into the esophagus. Now what happens? The food has reached into the stomach. ठीक है. स्टमक में 3 secretions होते हैं. पहला HCl, दूसरा mucus and third is the enzyme pepsin. ठीक है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन. जब फूड स्टमक में आया तो ये जो एंजाइम था पेप्सिन, पेप्सिन ने कहा कि जब तक यहाँ का एटमॉस्फेयर एसिडिक नहीं होगा मैं काम नहीं करूंगा. कोई बात नहीं, बहुत हम लोग की हाईली सोफिस्टिकेटेड मोस्ट इवॉल्व मशीन है ह्यूमन बॉडी, है ना. ऑटोमेशन पे चलती है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम करती है. वेरी गुड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, पेप्सिन ने बोला मैं एसिडिक मीडियम में ही काम करूंगा. स्टमक ने कहा कोई बात नहीं, मैं जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है यहाँ पर हम HCl सिक्रीट कर देंगे. पर मैम HCl तो एसिड होता है, कट जाएगा. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है बॉडी के लिए, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. बट HCl एसिड तो होता ही है, थोड़ी सी कोरोजन तो करेगा, एक बहुत डाइल्यूट होता है. उसको प्रोटेक्शन के लिए नेचर इज सो ब्यूटिफुल, सो हेल्पफुल. इफ वी हेल्प द नेचर, नेचर ने क्या करा, हम आपको म्यूकस की लाइनिंग दे रहे हैं. आप म्यूकस की लाइनिंग हो गई है,
ये म्यूकस की लाइनिंग इट विल प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक विद द इफेक्ट ऑफ HCl। विन विन सिचुएशन है, दोनों का ही काम हो रहा है ना। पेप्सिन अब काम करने को तैयार है, ठीक है। HCl का एक तो काम होता है कि ये स्टमक का एटमॉस्फेयर जो है वो एसिडिक करता है सो दैट पेप्सिन कैन वर्क। दूसरा HCl का काम क्या होता है, जो भी आपने फूड खाया है उसमें जो भी अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं HCl किल्स दैट, ठीक है। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ HCl। म्यूकस का सिर्फ इतना सा काम होता है कि ये स्टमक को एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग देता है ताकि HCl से उसका डैमेज ना हो। एंड पेप्सिन वर्क्स ऑन प्रोटीन। आप याद करने के लिए P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन द स्टमक, ठीक है। चलिए यहाँ पर हुआ, अब क्या हुआ, अब फूड हमारा पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ी सी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ ऑन एन एवरेज 6 to 7.5 मीटर होती है, ठीक है। लेकिन मैम ये तो पता नहीं चलती, हमारी तो हाइट 1.5 मीटर ही है, और छोटे थे, इतनी लंबी सी कहाँ। तो आप देखिए ये बहुत ही कन्वोल्यूटेड फॉर्म में आपकी स्टमक, आपकी बॉडी कैविटी में रखी गई है, ठीक है। नेचर हैज अरेंज्ड इट, जैसे आप पाइप को ऐसे कॉइल करके रखते हो ना, उसी तरह से आपकी 6 to 7.5 मीटर लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी उस तरह से कॉइल करके आपके पेट में रखी है। The food is completely digested here in the small intestine. इनको डाइजेशन का एंजाइम्स कहाँ से आएगा? पहली चीज तो आप देखिए लिवर। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस का 2 काम होगा। आप बड़ी क्लासेस में चढ़ेंगे इसको, फिर आप बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स भी करेंगे। पर क्लास 7th आप ये जानिए कि लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है या बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल पूरा कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। एक बार में पूरा बाइल हम नहीं यूज करेंगे तो ठीक है जी, बाइल लिवर ने सिक्रीट करा। दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपको ओलंपियाड वगैरह में, एज एन MCQ ऑल्सो इट कैन कम। सो लिवर secretes bile juice which is stored in a small bag potli, that is the gall bladder, ठीक है। बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस के 2 काम होते हैं। जो भी हमारे फूड का फैट है ना, एक तो ये होता है कि पैनक्रियास भी पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट इट। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड तभी डाइजेस्ट होगा जब एटमॉस्फेयर अल्कलाइन या बेसिक होगा, है ना। यहाँ पे क्या था? एसिडिक मीडियम था। स्मॉल इंटेस्टाइन में द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी बेसिक और अल्कलाइन, ओनली देन द फूड कैन बी डाइजेस्टेड। तो ये काम किसका है? बाइल का है। एक तो इसका एटमॉस्फेयर ये बेसिक या एल्कलाइन करता है, दूसरा जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। क्यों? आप देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस हो गए, सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा एंजाइम एक बार में फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दिस प्रोसेस इज नोन एज emulsification. emulsification, ठीक है। What is emulsification? आपको बुक में नहीं मिलेगा NCERT की, but you शुड नो इट
जो भी बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह में जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नेवर हार्मफुल. सो एमल्सिफिकेशन इज, बाइल जूस क्या करता है, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, इट कन्वर्ट्स देम इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो दैट मोर एंड मोर एंजाइम कैन वर्क ऑन इट, and this process is known as emulsification done by the bile secreted from the liver. ठीक है, तो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये काम हो रहा है. दूसरा क्या काम हो रहा है, आप स्टमक के नीचे देखिए एक आपको ग्लैंड और दिख रही है, दैट इज द पैनक्रियास. पैनक्रियास secretes two juices, two digestive juices. One is trypsin, the other one is lipase. Very good. Trypsin and lipase. Trypsin आप देखिए किसका भाई लग रहा है, पेप्सिन का, है ना, सिन नाम दोनों का आ रहा है. तो जहाँ ट्रिप्सिन का भी क्या काम है, जो भी प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे बचा रह गया, यहाँ पर आके वो कंप्लीट होगा. लाइपेज, फैट्स को हम लोग लिपिड्स भी कहते हैं, तो फैट को अगर हम लिपिड कहते हैं तो लिपिड से आप याद रखिए लिपिड से हो जाएगा लाइपेज. लाइपेज का क्या काम है, इट डाइजेस्ट फैट. जो भी हमारे फूड में फैट होता है इट इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज. सो complete digestion is taking place in the small intestine. Starch is getting converted, please note it down. Starch, symbolic लिख रही हूँ, starch gets converted into glucose, simplest form. आपका protein, it gets converted into amino acids, and fats get converted into fatty acid and glycerol. I repeat once again, starch gets converted into glucose, protein gets converted into amino acid, fats get converted into fatty acid and glycerol. ठीक है, so यहाँ पे complete digestion हो गया. तो फिर मैम इतनी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, बताती हूँ क्या काम है. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ वो उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा. 2 मिनट बाद बताऊंगी वो कैसे. जो भी अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स तो सारे एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो भी फूड बचा अब वो क्या है, वेस्ट है ना. वो वेस्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में कलेक्ट होगा और पीरियोडिकली फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी और इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड थ्रू द एनस. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, नॉर्मली 1 to 1.5 मीटर. तो फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी है तो इसको लार्ज क्यों कहते हैं, इसकी थिकनेस की वजह से, है ना. लार्ज इंटेस्टाइन इज थिकर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिनर, दैट इज व्हाई द नेम, है ना. अदरवाइज लेंथ में ये 6 to 7.5 मीटर्स है एंड दिस 1 to 1.5 मीटर्स. ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन हो गया. आपको थोड़ा मैंने डाइजेशन के बारे में भी बता दिया. 2 चीजें रह गई, आपका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, अगर हम यहाँ से जरा सी पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का एनलार्ज करेंगे तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं. व्हाट आर दे, वी कॉल देम विलाई. These finger like projections are villi, singular is vilus. Now what does this villi do? जो भी जब हम कह रहे हैं आपको कि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है
तो एब्जॉर्प्शन भी कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि एक ब्लड वेसल जा रही है और ये जितने भी विलाय हैं दे आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, दोनों तरफ से। ये ब्लू कलर का मैंने ब्लड दिखाया बिकॉज आई डोंट हैव रेड कलर। तो आप ये देख लीजिए कि ये अगर विलाय में हमारी ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, व्हाट इज हैपनिंग, जो भी हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स थे, इफ यू कैन सी आई हैव ग्रीन कलर, आई एम ट्राइंग, जो भी यहाँ पर फूड न्यूट्रिएंट्स थे वो ये जितनी भी ब्लू कलर की हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं डिफ्यूजन से वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो वेयर इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस, इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द विलाई बाय द रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड के पास जब सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड उनको लेके पूरी बॉडी में जाएगा, है ना। इट विल टेक इट टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद जब हमारी सारी सेल्स के पास में ये न्यूट्रिएंट्स हैं, जब रेस्पिरेशन होगा, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर में ही ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और एनर्जी निकलेगी। एनर्जी किस प्रोसेस में निकल रही है, रेस्पिरेशन। एनर्जी के लिए बेस मॉलिक्यूल्स हमें कहाँ से मिल गए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस डाइजेशन, ओके। So this is how 5 steps are there in the digestion of human beings. I am sure it is clear to you all. Now there is one more digestion given in your book and that is in the amoeba. ठीक है, तो जैसा आपकी बुक में डायग्राम है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज मैं जो आपको दिखा रही हूँ आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। बोथ वेज इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपकी बुक में एक सिंगुलर डायग्राम है, उसमें आपको फूड वैक्यूल्स की मूवमेंट दिखानी पड़ेगी थ्रू दी एरोज, अदरवाइज आप ये ज्यादा इजी डायग्राम बना सकते हो। सो वी नो दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वी आर स्टडीइंग डाइजेशन इन अमीबा। वेरी क्विकली, amoeba is a unicellular organism. It has a nucleus and it has cytoplasm or protoplasm, and these are the false feet or pseudopodia. अगर हम इसकी एटिमोलॉजी देखेंगे, इसकी ओरिजिन देखेंगे, ग्रीक वर्ड से है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फुट। फॉल्स फुट जिस ऑर्गेनिज्म के पास है, ये तो ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेलुलर है, ये तो हमें नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, वी कैन सी इट थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली। तो बट इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बनती बिगड़ती रहती है, तो जो ये ऐसे एक्सटेंशंस बनते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, वी कॉल देम स्यूडोपोडिया और द फॉल्स फुट। What happened? Amoeba sensed, single cell है, ना brain है ना कुछ है। Amoeba sensed that there is a very small food particle. It started moving towards it. How? I'll show you how. इसने क्या किया, जो भी फूड पार्टिकल था उसकी ओर इसने अपने स्यूडोपोडिया बढ़ाने शुरू करे, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ओके। सो यहाँ पर फूड था, इसको इसने एनसर्कल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे जब इसने एनसर्कल किया तो क्या बना, वो फूड पार्टिकल फाइनली इसके बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया विच इज कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज, और ये इसके अंदर फूड पार्टिकल की एक फूड वैक्यूल बन गई। अमीबा ने क्या किया, अब
सेल साइटोप्लाज्म ने क्या किया, इसके ऊपर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, भाई अब तो ये हमारी अमीबा के अंदर आ गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये फूड वैक्यूल पे अमीबा ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालने शुरू करे। ओके अमीबा, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, सिंगल सेलुलर बट यू नो हाउ टू सरवाइव। अब क्या हुआ, ये जो सारा डाइजेशन हो गया तो अमीबा तो अपना स्यूडोपोडिया से आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ आ गई हमारी वेस्ट मटेरियल वाली फूड वैक्यूल, है ना। दिस इज, आई राइट, दिस इज द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, ये वैक्यूल यहां से यहां आ गई, अमीबा आगे बढ़ता जा रहा है और अमीबा आगे बढ़ता भी जाएगा, ठीक है। स्यूडोपोडिया है, बनते बिगड़ते रहते हैं, अमीबा आगे बढ़ता गया और फूड वैक्यूल इजेस्ट हो गई। द फूड वैक्यूल कंटेनिंग नाउ द अनडाइजेस्टेड waste material, right? So children, this is how the digestion takes place in amoeba. आपकी बुक में एक एनिमल और दिया हुआ है, ruminants, है ना। ruminants मतलब काऊ जो कि ruminate करते हैं, जो गाली करते हैं, है ना। आपने देखा होगा काऊ या बफलो बैठी हुई हैं, उनके मुंह से झाग जैसा व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ निकलता रहता है। और digestion in ruminants, diagram is not that important. What you need to know is that in ruminants, cow, they basically eat grass, है ना। जितने भी हर्बीवोर है, हॉर्स हो गया, काऊ हो गई, हॉर्स को भी देखा होगा खड़ा खड़ा जुगाली कर रहा है ना। बट चलिए, हॉर्स तो चना वगैरह भी खाता है, गुड़ खाता है, so that it gets more power. Let's talk about our cow or buffalo, right? आपने देखा होगा उनको जो चारा दिया जाता है या घास दी जाती है वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, and then they sit and then they ruminate और जुगाली करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी घास वगैरह होती है उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, we call it cellulose. We call it cellulose and cellulose is very difficult to digest, है ना। तो जो जितने भी ruminants होते हैं उनका स्टमक 4 चेम्बर्स में बटा हुआ होता है। Many books might be showing you the detailed diagram. Trust me, it is not required. Class 7th में आपको इतना पता है, इतना बहुत है। तो काऊ के फूड पाइप के बाद ही जो स्टमक का हिस्सा होता है ना, वी कॉल इट rumen. There are many parts of the cow stomach. ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं rumen, है ना। तो काऊ जब भी खाना खाती है वो rumen में स्टोर करती है, आराम से बैठती है, it brings it back to the mouth. इनके भी salivary amylase definitely secrete होंगे। It mixes the, काऊ के भी टीथ आप देखिए सारे एक जैसे होते हैं, है ना, ताकि अच्छे से ग्राइंड कर सके। यू ट्राई टू रिकलेक्ट काउज टीथ, बफलोज टीथ, है ना, चौड़े चौड़े ब्रॉड होते हैं ताकि अच्छे से क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर सकें, है ना। पर्पस क्या है, जितना वो उसको क्रश करेंगे सेलुलोज और ग्रास उतने छोटे छोटे पीसेस में होगी, उतना ही उसमें सलाइवा मिक्स होता जाएगा और उतना ही सेलुलोज का डाइजेशन प्रोसेस में आएगा, ठीक है। तो व्हेन काउ ईट्स इट पुट्स इट इन द rumen, फिर आराम से बैठती है और जिस फूड को वो बार बार च्यू करती है दैट फूड इज नोन एज cud. These are the important words for the digestion in ruminants. आपको इतने वर्ड्स याद रहेंगे, आप कर लोगे, लिख लोगे सारे आंसर्स, ठीक है।
तो कड को ये जो यहाँ रूमेन से वापस अपनी बक्कल कैविटी में लाके कंटिन्यूअसली रूमिनेट करती है, उस फूड को हम लोग बोलते हैं कड। उसमें बार बार सलाइवा मिक्स करते हैं। एक चीज और होती है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। रीजन इज फर्स्ट, वी डोंट रूमिनेट। सेकंड, there is a cellulose digesting bacteria which is found in the alimentary canal. This bacteria, there is this cellulose digesting bacteria which is found in the alimentary canal of this ruminant, and that helps in the digestion of cellulose. And that is why if a question comes that why humans cannot digest cellulose, that is a very important reason, that we do not have that bacteria in our gut, so we cannot digest cellulose, right? So children, this is all about this chapter, nutrition in animals, in class 7th, and you watch this video again and again. Still, if you stuck at any doubts, you have more questions, please ask it in the comment section. I'll be able to reply you, explain it to you. All right. Thank you so much. God bless.